With that, we have breaking news coming in at this point with regards to the Disha Patni house shooting case. Now, this is big scoop that we are bringing to you on the Disha Patni house shooting case, wherein foreign weapons were found with sharpshooters. Turkish Zigana pistol, Austrian Glock pistol have been seized. Weapons smuggled via drone. Now, 5 shooters were involved, remember, in the shooting. 2 have been killed in an encounter so far. So these are the weapons that we are bringing to your very notice at this point when we speak of the Disha Patni house shooting case. More details now coming in with regards to how foreign arms were used and they were recovered for that matter. And for now, while there were 5 shooters in total who were involved from the Goldi Brar gang, 2 of them have been killed in an encounter. The weapons that were, in fact, that we are speaking about have been smuggled via drones. That's what we are picking up at this point. Now, these were the weapons that were found with the sharpshooters itself. Turkish Zigana pistol, Austrian Glock pistol that was seized. Goldi Brar gang had in fact claimed responsibility for this very attack, citing that there was spiritual reasons behind it, wherein they didn't like certain comments that were made by Disha Patni's sister Khushbu on spiritual leaders. Now, we have Arvind Ojha joining us on the broadcast to bring us more details on this very matter. Arvind, very good morning to you. सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो फॉरेन वेपन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो सीज हुए हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इनकाउंटर साइट से 2 पिस्टल बरामद हुई है। एक टर्की मेड जिगाना पिस्टल है, दूसरी ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल है। अगर के पास वापस आती हूँ, व्यूअर्स, लेट मी क्विकली जस्ट डिप इन एंड शो यू दिस रिपोर्ट ऑफ हाउ दीज वेपन्स वर सीज्ड राइट फ्रॉम द एनकाउंटर स्पॉट। पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, लगातार टेक्निकल मैनुअल जो मुखबिर हैं उनसे जानकारी ले रहे थे। रात में बुधवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ये पूरी इनकी संयुक्त टीम ने इस जगह पर घेराबंदी कर रखी थी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं पता था कि एग्जैक्ट यहीं आ जाएंगे। तो इस पूरे इलाके में पुलिस की एक्टिविटी थी और जैसे ही ये बदमाश रात के वक्त, चूंकि अंधेरे होने पे इसलिए निकले पुलिस का कहना है ताकि इन पर किसी की नजर न पड़े, तो पुलिस ने जब इनको इस जगह पर देखा और उन्हें रुकने का इशारा किया, तो रुकने की बजाय जब वो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ से, वो सामने की तरफ से आ रहे थे, तो जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते ही वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं पुलिस पर रुकने की बजाय और भागने की कोशिश करते हैं। जवाबी कार्रवाई होती है, उनकी बाइक स्लिप करते करते तकरीबन 10 मीटर के करीब दूर जाती है और वहां पर जाकर के उनकी बाइक। That was Himanshu Mishra bringing us the live report from the encounter site as to how the entire matter went about, how the weapons were seized, what happened during the very encounter. We go back to Arvind at this point. Arvind, आप हमें बता रहे थे इस weapon के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है और ये जो encounter हुआ है उसके बारे में भी हमें थोड़ा और जानकारी दीजिए, क्योंकि 5 लोग इन्वॉल्व थे, अभी सिर्फ 2 लोगों को एनकाउंटर में मारा गया है। Well, so we will get that connection back with Arvind Ojha at this point. But yes, these are the details, viewers, that we are in fact bringing to you on the very Disha Patni firing, the house shooting case that we had been following very closely here, wherein 5 shooters were involved, as we are telling you. In fact, it was the Goldi Brar gang that had claimed responsibilities. And now there are 2 of them who have in fact been encountered by the police. It was a joint operation that took place, and these are major revelations in the Disha Patni's house firing case. The 5 shooters from Goldi Brar gang went to Disha Patni's house to in fact fire. Right now, we also have Himanshu Mishra joining us live on the broadcast to bring us more details. Himanshu, a very good morning to you. आप हमें बता रहे थे कि एनकाउंटर साइट में एग्जैक्टली कल क्या हुआ, आप थोड़ी और जानकारी दीजिए। ये जो वेपन्स पाए गए हैं उसके बारे में, कि ये बोला जा रहा है कि ये ड्रोन से मंगाया गया था इनके द्वारा, कैसे एक्सेस किया, क्या और चीज़ पता चल रही है, प्लीज़ बताइए।
ग्लॉक और जिगाना ये जो दो पिस्टल है ये आमतौर पर छोटे मोटे अपराधियों के पास नहीं होती। ये बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हीं के पास हमने ये देखा है, क्योंकि ये बाहर से स्मगल करके जो बड़े तस्कर हैं उनके जरिए आती है। अभी आप देखिए स्पॉट पे हम लोग मौजूद हैं जहां पर बुधवार शाम को देर शाम को यहां पर एनकाउंटर हुआ था। 3 टीमें थी, संयुक्त टीमें थी। यूपी एसटीएफ में जिसके पास लीड थी, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अब आप देखिए इस जगह पर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 20 मीटर की दूरी में तमाम गोलियों के ये निशान है। जो छोटे सर्कल है, दरअसल ये जो आपको नजर आएंगे श्रेया, ये छोटे सर्कल जो हैं ये गोलियों के निशान, जहाँ पर गोलियों के खोखे गिरे हैं, ये उनके हैं। जबकि हम आपको लेके चलते हैं, ये आप आगे देखिए। दरअसल जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि इन्हीं जो अरुण और रविंद्र है, सीसीटीवी से इनकी पहचान हो गई, तो ये दोनों का एक जो जानकार है वो ट्रोनिका सिटी के पास रहता है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि ये दोनों जा सकते हैं। पुलिस ने इस पूरे इलाके में ट्रैप लगाया था। जब इस जगह पर वो पहुंचते हैं, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ी सड़क भी आपको हल्की सी यहाँ पे खराब दिखेगी। यहाँ वो पहुंचते हैं तो पुलिस ने ठीक इस जगह पर, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, इस जगह पर उनको घेरा, रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने आरोप है कि गोली चला दी। पुलिस टीम पर भागने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा आप देखिए तो जंगल का इलाका है चारों तरफ, अगर आपके ध्यान जाएगा, और सुनसान है, रात का वक्त था, यहाँ पर अंधेरा था, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने गोली चलाकर भागने की कोशिश की, जो गोलियों के ये निशान है। लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई में जब उनको गोली लगी तो वो बाइक लेकर के तकरीबन 15 मीटर तक आगे जा पाते हैं, और ये तमाम गोलियां देखिए लगातार चल रही हैं। और यहाँ आकर के ये बड़ा सर्कल जो आपको दिख रहा है, यहाँ आकर के उनकी बाइक गिर जाती है, यहीं पर गिर जाती है। गोली लग चुकी थी, दोनों घायल हो चुके थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस पहुंचती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उन दोनों की मौत हो जाती है। अब इनके बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के। इनके खिलाफ 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। जिस तरीके की गोलियां इन्होंने चलाई थी और जिस तरीके के हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया था और जो तरीका इन्होंने अपनाया था दहशत फैलाने का, उसके बाद से ही पुलिस इनके पीछे लगी थी। और ये बात साफ हो गया था कि इनके लिंक्स आगे भी हैं। रोहित गदौरा के अलावा भी इनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, पुलिस अब उन सारी चीजों को भी छानबीन कर रही है। और साथ ही साथ 12 तारीख से लेकर के 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इनकी मूवमेंट क्या थी, किन किन जगहों पर ये गए, कहां कहां ये जाकर के छिपे, इन सारी चीजों की भी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी ने मदद की, ये भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस लगातार 12 सितंबर से ही इनके पीछे पड़ी थी, क्योंकि सीसीटीवी आ गए थे। जब सीसीटीवी का ट्रेल दिशा पटानी के घर से लेकर के आसपास के इलाकों की निकाली गई थी तो इनके चेहरे साफ नजर आ गए थे और पहचान हो गई थी कि अरुण और रविंद्र हैं दोनों। और उसके बाद से ही पुलिस इनको तलाश रही थी। और ये जी। जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन था, ये 17 तारीख की शाम ट्रोनिका सिटी में यहीं पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ आखिर खत्म हुई। श्रेया। जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, लेट me quickly take your notice to one of these images on your screen, that is of a petrol pump. Let us tell you that this is an exclusive visual that we are bringing to you of two other shooters who are still on the run. These are Nakul and Vijay, and these have been captured at a petrol pump. Remember, when this entire operation was going on, this is information that we have picked up, there were over 2,000 CCTV footages that have been scanned. Now, one such photograph has come to light. While Arun and Ravindra have already been encountered using those very CCTV footages, these two on your screens are other two shooters who are still on the run, Nakul and Vijay, that we are bringing to you. Now, with that, we are also shifting our focus and quickly taking you to Arvind Ojha, a colleague who had spoken to the ADG, Law and Order of Uttar Pradesh. Let's listen into what he had to say about this very joint operation. सर, ये गाजियाबाद में एक इनकाउंटर हुआ है, क्या डिटेल्स है सर? एक मुठभेड़ में यूपी पुलिस की एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की जॉइंट कार्रवाई में ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में गाजियाबाद में ये दो अपराधी मारे गए। इनके पास से दो सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड पिस्टल्स, एक ग्लॉक और एक जिगाना बरामद हुए हैं। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए।
यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम का सफाया हुआ है। इस प्रकार की घटना काफी दिन बाद रिपोर्ट हुई है, इसलिए इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया था। और अब उम्मीद है कि दोबारा कोई भी गैंगस्टर यूपी पुलिस के इस रिजॉल्व को चैलेंज नहीं करेगा अथवा उसको टेस्ट नहीं करेगा। So viewers, this is all the information we have for you on the Disha Patni case, which we are keeping a close track of as investigations continue.